लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our new series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates, and analysis of General and Assembly Elections 2024. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, साथ ही मतदाता जागरूकता पर भी करेंगे बात। इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए हम स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों के साथ साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक रोशन गौड़ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। And let's listen to the news related to the elections, but before that, have a look at the headlines. BJP and PMK agreed to fight Lok Sabha elections together in Tamil Nadu. Notification for the first phase of elections to be issued tomorrow. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi holds roadshow at Palakkad in Kerala. Congress Working Committee discusses party's manifesto for Lok Sabha polls. And Sanjay Mukherjee to be the new DGP of West Bengal. भाजपा और पीएम के तमिलनाडु में साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने पर सहमत। पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने केरल के पालक्काड शहर में रोड शो किया। कांग्रेस कार्य समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर की चर्चा। और संजय मुखर्जी होंगे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी। सबसे पहले खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए पट्टाली मक्कल काची पार्टी पीएमके के साथ गठबंधन किया है। पीएमके 10 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। पीएमके के संस्थापक एस रामदास, अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव देश भर में 7 चरणों में कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। Moving on, Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi today participated in a roadshow in Palakkad in Kerala as part of the NDA election campaign. This was Mr. Modi's first campaign event in Kerala after the announcement of the general elections. BJP State President K. Surendran and NDA candidates from Palakkad and Ponnani Lok Sabha constituencies joined the Prime Minister. After the roadshow, Mr. Modi proceeded to Salem in Tamil Nadu, where he addressed a public meeting. He said the NDA has got new energy following the seat-sharing deal with the PMK. कांग्रेस कार्य समिति ने आज आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा की। समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। The 1989 batch IPS officer Sanjay Mukherjee will be the new DGP and IGP of West Bengal. He replaces IPS officer Vivek Sahai, who was appointed to the post yesterday after Rajiv Kumar was transferred from the post by the Election Commission. The BJP today came down heavily on AAP convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for repeatedly skipping the Enforcement Directorate ED's summons linked with the Delhi excise policy. Talking to media in New Delhi, party spokesperson Sambit Patra said there is enough evidence against him in this case. Referring to a recent judgment of a Delhi court, Mr. Patra said the summons against Mr. Kejriwal were legal. He accused the Chief Minister of making excuses to avoid the summons. The BJP spokesperson also mentioned the recent arrest of BRS leader K. Kavita in the alleged liquor scam case to target Mr. Kejriwal. अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। रोशन गौड़ जी, पहली खबर पर हम आज नजर डालें तो भाजपा ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए पट्टाली मक्कल काची पार्टी पीएमके के साथ गठबंधन किया है।
भाजपा काफ़ी समय से ये इस प्रयास में रही है कि कैसे दक्षिण भारत में अपनी पैठ और बढ़ाई जाए, कैसे वहाँ पे उपस्थिति और मजबूत की जाए। ये जो गठबंधन पीएमके पार्टी के साथ किया है भाजपा ने तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में और पूरे कहें दक्षिण भारत में भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है? देखिए, हमें इस जो दक्षिण भारत का हिस्सा है उस पूरे हिस्से पर हमें नज़र मारनी पड़ेगी कि उत्तर भारत में भाजपा की सीटें हैं वो सैचुरेशन पॉइंट पर हैं। तो जो 370 का टारगेट है बीजेपी का, उसके लिए हमें दक्षिण में जाना ही पड़ेगा। और दक्षिण में भाजपा की कर्नाटक में और तेलंगाना में उम्मीदें हैं, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में थोड़ी दिक्कत है। तो वहाँ बीजेपी को कैसे सीटें मिले, तो इसलिए वो गठबंधन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री पिछले 3-4 महीने से आप देखें तो लगातार वहाँ दौरे कर रहे हैं। अब पिछले 3 दिन से आप देख लीजिए कि लगातार वो दक्षिण में ही हैं। तो पीएमके के साथ गठबंधन होना, क्योंकि जो पीएमके है वो बेसिकली आपको याद होगा कि यूपीए सरकार में भी अंबुमणि रामदास हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उसके बाद अब उनका एनडीए में आना, क्योंकि उत्तरी तमिलनाडु में जो बेनियार कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, उनमें उनका बड़ा प्रभाव है। तो अभी जो बातचीत चल रही है बीजेपी की, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनके साथ भी चल रही है। तो एआईएडीएमके के साथ भी चल रही है, अभी उस पर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पीएमके के साथ हो गया है। तो इधर आने के मतलब हुआ कि बीजेपी का अगर इन छोटी दलों से, जो पुराने एनडीए के घटक दल से उनसे होता है, तो वहाँ कुछ न कुछ बीजेपी के हाथ लगेगा। जी रोशन जी, भाजपा काफ़ी समय से प्रयासरत रही है कि दक्षिण भारत में कैसे अपनी मजबूती, अपना गढ़ मजबूत बनाया जाए। क्या प्रमुख चुनौतियां आप देखते हैं? क्या भाषा एक बड़ा मुद्दा है कि भाषा के मामले में भाजपा को कुछ समस्या है, या संगठन के मुद्दे पर भी, संगठन के मामले में भी कुछ कमियां हैं जिनको कि और मजबूत किया जाना जरूरी है? मुझे लगता है कि बीजेपी की जो छवि रही है कि वो उत्तर भारत की और अगड़ों की पार्टी रही है। तो इसके कारण मुझे लगता है कि जो आपने भाषा की बात कही है वो बिल्कुल एक मुद्दा है। और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि अभी तक बीजेपी ने अप्रोच भी नहीं किया था। तो अभी तमिलनाडु में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लगातार वो साउथ में दौरे कर रहे हैं। और अब देखिए, उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी की है। जब नई संसद बनी तो वहाँ एक सेंगोल की स्थापना की गई, वो चोल वंश का है, उन्होंने अपने आप को तमिल से जोड़ा। दूसरा, उन्होंने जो अभी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उससे पहले उन्होंने धनुषकोडी और रामेश्वरम का दौरा किया था, तब भी उन्होंने तमिलों को अपने आप से और राम मंदिर से जोड़ा था। और एक उन्होंने बनारस में तमिल संगमम, एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, उसमें भी तमिलनाडु से ट्रेनें भर भर के बनारस लोग आए थे। तो उन्होंने अप्रोच किया, यानी उन्होंने कनेक्ट किया अपने आप को तमिलनाडु से, जो इससे पहले एक कमी थी कि बीजेपी केवल उत्तर भारत में तक ही सीमित थी। तो दक्षिण में सबसे पहले उन्होंने जाके वहां उन्होंने पैर जमाए कि मैं तुम्हारा हूं और तुम भी मेरे हो। तो जो अभी एक नारा उन्होंने दिया है कि मोदी का परिवार, उसे मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। Mr. Gaur, here I would like to ask, moving away from the BJP, if you look like Vishal was also saying that, the South has been a new territory for the BJP. It's the regional parties which have had, a stronghold there. So apart from the BJP and the regional parties, do you think Congress also has some chance this time? What are the chances of the other parties there? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ उनका जो गठबंधन है, पिछली बार भी उनका गठबंधन था, तो उनके गठबंधन में 39 में से 38 सीटें इस गठबंधन ने जीती है। तो अभी भी, क्योंकि वहाँ जो तमिलनाडु का एक ट्रेंड है कि एक बार डीएमके आती है और एक बार एआईएडीएमके आती है, तो अगर पिछली बार उनकी 39 में से 38 सीटें थी, तो मुझे लगता है कि फिर वो इस बार एआईएडीएमके की तरफ लोग जा सकते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कोशिश की और जो एनडीए के अपने घटक दल बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि कुछ अगर उनको मिला तो डीएमके गठबंधन का शेयर कम होगा। Moving on to the fact that tomorrow the notification for the first phase of elections is going to be announced. It's going to be the biggest phase after the 7 phases that the elections will take place in, because there's going to be 21 in all, 17 states and 4 union territories in terms of the numbers of candidates. How important is this phase for the overall election process if we look at it? देखिए, ये कल जो नोटिफिकेशन होगा वो 102 सीटों के लिए होगा जी। उसके बाद जितनी भी सीटों के लिए नोटिफिकेशन होगा वो 50-60 के बीच की है। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो सबसे बड़ा इलेक्शन होगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और सभी सीट जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने मैनिफेस्टो हो चाहे अपने कैंडिडेट्स हो, उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। और इसी में आप सोचिए कि आपकी जो 545 सीटें हैं, 543 सीटें हैं, उसका मेजर पोर्शन इसी में आना है, तो इसलिए सारा फोकस इस पर रहेगा।
You spoke about the manifestos, of course, and today Congress Working Committee held a meeting to finalize its manifesto. How do you see the chances of the Congress party, like any other party, they're also trying to, get to get into a partnership with other parties, and they're also trying to make a comeback vis-a-vis the 2019 elections when they just had about 45 seats. How do you see the chances of the party right now? देखिए, कांग्रेस का पिछली बार आपने देखा कि 52 सीटें मिली, और इस बार जो उन्होंने कोशिश की थी इंडिया गठबंधन की, वो सारे गठबंधन छोड़ के जा चुके हैं। अब उनके साथ ले देकर एक डीएमके बची हुई और एक समाजवादी पार्टी बची हुई और एक छोटे मोटे दल बचे हुए। तो वो कितनी भी कोशिश करेंगे, कितनी भी ताकत लगाएंगे। अब उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश उनका लगभग 0 हो रहा है, क्योंकि वहां से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी उन्होंने रायबरेली छोड़ दिया और वो राज्यसभा में आ गए हैं। तो उनका जो उत्तर प्रदेश जो उनकी प्रमुख उनकी भूमि थी, वो उन्होंने छोड़ दी है। तो कांग्रेस कहाँ से अपने पांव जमाएगी, मुझे तो समझ नहीं आता। And it's now time to go over to our correspondents, our regional correspondents, and today we'll be joined first by our correspondent from Mumbai, Pratna. Pratna, welcome to the program. And the first thing I want to ask you is about the election schedule, including the dates of the 5 phases announced for the 48 seats in Maharashtra. So, Anubha, as far as Maharashtra is concerned, Maharashtra has a total number of 48 Lok Sabha seats. Talking about the polling schedule, the Lok Sabha elections in Maharashtra will be held in 5 phases. To be precise, the first 5 phases. So, elections here in Maharashtra would start on 19th of April and will end on the 20th of May. In the first phase, that is on the 19th of April, the voting will take place in Ramtek, Nagpur, Bhandara, Gondia, Gadchiroli, Chimor and Chandrapur districts of Maharashtra. Buldhana, Akola, Amravati, Wardha, Yavatmal, Washim, Hingoli, Nanded and Padbhani will go to polls in the second phase, that is on the 26th of April. In the third phase, that is on the 7th of May, voting will take place in Raigad, Baramati, Dharashiv, Latur, Solapur, Madha, Sangli, Satara, Ratnagiri, Sindhudur, Kolhapur and Hatkanganangale. In the fourth phase, the voting is scheduled in Nandurbar, Jalgaon, Raver, Jalna, Chhatrapati Shivaji Nagar, Mawal, Pune, Shirur, Ahmednagar, Shirdi and Beed. Meanwhile, Dhule, Dindori, Nashik, Palghar, Bhivandi, Kalyan, Thane and Mumbai will go to polls on the 20th of May 2024. Here, along with the Lok Sabha elections, so let me tell you, the by-elections will also be held for the Akola West Assembly constituency in the second phase. These elections have been necessitated due to the death of the MLA Govardhan Mangilal Sharma. Pratna, what information do you have regarding the list of candidates that have been declared so far by the political parties? Anubha, yes. So here, the Bharatiya Janata Party is the only party that has announced the list of candidates. On Wednesday, the party announced the 20 candidates from Maharashtra. Union Minister Piyush Goyal will contest from Mumbai North. Nitin Gadkari is going to contest from Nagpur seat. Senior party leader and former state minister Pankaja Munde is going to contest from Beed in Marathwada. The Union Ministers of State, Dr. Bharti Pawar and Kapil Patil are going to contest from Dindori and the Bhivandi seats. State Forest Minister Sudhir Mungantiwar will contest from Chandrapur. As far as the Mahavikas Aghadi, which is the alliance of the Congress, Shiv Sena UVT and Sharad Pawar's NCP is concerned, the party has not yet reached on a consensus in terms of seats. And even in Mahayuti, Ajit Pawar's NCP and the Shiv Sena led by Chief Minister Eknath Shinde have not announced the candidates yet. Anubha. Thank you, Pratna, for that detail. Mr. Ghoda, here I want to ask you, when we talk about Maharashtra, in terms of the Lok Sabha seats, it has the second most number of seats after UP. So obviously the results, whatever results we get from Maharashtra will have a definite bearing on, who forms the party at the center. So what are the factors that you see affecting the elections this time in Maharashtra? देखिए, महाराष्ट्र में पिछली बार 23 सीटें बीजेपी जीती थी और 18 सीटें शिवसेना जीती थी, तो एक बड़ा चंक उनके पास आया था। इस बार जो शिवसेना थी वो उद्धव ठाकरे वाला गुट वो बीजेपी से चला गया था, एनडीए से, लेकिन उसमें से जो बड़ा पोर्शन है यानी शिंदे गुट वापस एनडीए में आया। तो जो मेजर पोर्शन है वो जो शिंदे वाला गुट है वो वापस एनडीए में आया है। और ऐसे जो एनसीपी है, एनसीपी की ताकत भी आधी हुई है, अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए। तो 3 तो मेजर इधर आ गए। उधर कांग्रेस में कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं अशोक चौहान वो बीजेपी में आ गए, और भी बड़े लीडर हैं, कुछ लीडर हैं जो बीजेपी में आए। तो महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है उसकी स्थिति आपने देखी है कि उद्धव ठाकरे गुट भी टूटा हुआ है,
एनसीपी गुट टूटा हुआ है, और कांग्रेस में भी बड़े बड़े जो उसके लीडर थे वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ भी इंडिया गुट को बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, और जो जिस तरह से बीजेपी ने अपने वहाँ पर आधार बढ़ाया है, उस आधार पर बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। सियासी समीकरण काफी बदल गए हैं महाराष्ट्र में, लेकिन क्या आपको लगता है रोशन जी कि जो शरद पवार एक बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या ये अभी भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि चुनावों पर, नतीजों पर एक असर डाल सकता है आगे चल के? मुझे लगता है कि उनके पास अब बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जब से उनकी पार्टी टूटी है तो उन्होंने ऐसा काम नहीं किया उन्होंने कि अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा कर सके। तो जो भी कुछ उनकी ताकत थी वो अजीत पवार थी, तो अजीत पवार बीजेपी में आ गए हैं, वो एनडीए में शामिल हो गए, तो और उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शरद पवार जी के साथ अभी एक दिक्कत है कि एक उम्र का, और दूसरा उनके जो संगठन है वो टूट गया है। तो उस संगठन के कारण वो शायद मुझे लगता है कि वो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी टूटे। एकनाथ शिंदे टूट करके अलग आए और अजित पवार एनसीपी से अलग टूट करके आए। क्या ऐसा नहीं है कि मतदाताओं में कहीं ना कहीं एक मन में एक वो होगा कि इन्होंने जनादेश को वो किया, उसको अवहेलना की और पार्टियों को छोड़ा, अपनी मूल पार्टियों को? क्या इसका भी असर चुनावी नतीजों पर मुझे जो लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि उद्धव ठाकरे की तरफ थोड़ी सिंपैथी हो सकती है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने पार्टी खड़ी की थी और उसमें जो एकनाथ शिंदे टूट कर आए हैं, तो पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा जो बाई इलेक्शन हुए और जहां उद्धव ठाकरे का गुट के लोग लड़े, उनको विजय प्राप्त हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि उद्धव ठाकरे को थोड़ी सी सिंपैथी मिल सकती है, और इसका शायद अगर जो इंडिया गठबंधन है वो अगर मजबूती से लड़ेंगे तो उनको फायदा हो सकता है। और अब हमारे साथ पोर्ट ब्लेयर अंडमान से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राकेश चंद्रलाल। राकेश जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पहले चरण में जो होने वाले अंडमान निकोबार के लोकसभा चुनाव को लेकर आपके पास क्या अभी विशेष जानकारी है? देखिए, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की मात्र एक सीट है, और इस एक सीट के लिए भी जो हमारे स्थानीय जो निर्वाचन कार्यालय है उसकी ओर से सारे बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर जो कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 3,11,802 है, और इसके लिए 412 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और जो 9 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जो सिर्फ महिलाओं द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। और सबसे विशेष बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है, और यहाँ आने जाने के लिए जलियानों या छोटी नौकाओं का हमें सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जो स्थानीय निर्वाचन कार्यालय है वो इसमें जो कम से कम मतदाता वाले क्षेत्र भी है वहां तक भी अपनी पहुंच बनाई है और मतदान केंद्र स्थापित किए। सुदूर कैम्बेल बे का एक ऐसा क्षेत्र है पिलोपेशिया, यहाँ सिर्फ 12 मतदाता हैं और इनमें 7 पुरुष और 5 महिला मतदाता हैं। इसी प्रकार लॉफुल बे बोलकर एक इलाका है, वो भी कैम्बेल बे क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ सिर्फ 14 मतदाता हैं, इनमें 9 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। इनके लिए भी मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, आदिम जनजाति है, उनके ये लोग भी अब इस बार जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जैसे कि 98 शोम्पेन आदिम जनजाति हैं, 68 ओंगी है, 39 अंडमानीज है, ये सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। Mr. Gaur, here I would like to ask you, as our correspondent was just telling us, Rakesh Chandralal, the kind of special arrangements that the Election Commission has made, and it is making sure that not even the last voter has, gets left out of the voting process. We heard that, there is one election booth that is going to be only for 12 voters. There's going to be another election booth which is only going to be 14 voters. In fact, if I just go beyond Andaman, in Arunachal, there's going to be one polling booth where there's only single voter, and the Election Commission is making sure that nobody is being, left out. How important and how difficult, how challenging is the task of the Election Commission? देखिए, एक तो इस बार का जो चुनाव है वो हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव है। इस बार 98 करोड़ जो हमारे वोटर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, इसमें एक और जो बातें और जो सामने आ रही हैं कि हमारी जो फ्यूचर वोटर हैं, यानी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास फ्यूचर वोटर हैं जिनकी उम्र 17 साल हो गई है, और 17 साल से वो 18 साल में, और इस अप्रैल से उनका होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको भी वोट डालने की तैयारी की है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जो हमारा 67% जो वोटिंग हुई थी पिछले बार, उसको बढ़ाकर हम
ऊपर लेके जाएं तो वो तभी लेके जाएंगे जब वहाँ लोगों के पास इलेक्शन कमीशन जाए। और लोगों के पास इलेक्शन कमीशन जा रहा है जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है और जो बीमार है, इलेक्शन कमीशन उनके घर जाके उनको वोटिंग कराएगा। तो बहुत सारे इस बार इंतजाम किए हैं कि हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़े और जितने मतदाता हैं वो अपने अधिकार का उपयोग करें। तो उसके लिए जगह जगह मतदान केंद्र बनाना, जैसे अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने दिखाया था कि कैसे कैसे कितने जो कठिन रास्ते थे वहाँ कैसे लोग जाते हैं, घोड़े में जाते हैं या नाव में गए हैं, ऐसे ऐसे कठिन जगहों में, और वहाँ से वो लोग वोट डाल के पैदल भी जा रहे हैं, पैदल भी जा। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे जो वोटिंग परसेंटेज है, जो हम कहते हैं कि हमारा देश क्यों नहीं 100% की तरफ जाए, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है। The other thing I want to, talk about is the role of technology. We see that with every election that is held in the country, the role of technology is, getting prominence. So this time, if I'm not wrong, that this drones will be used for the first time, and in fact, drone-based checking of borders will happen. So clearly, the Election Commission is also keeping pace with the technology and using the technology to make the election process simpler, easier, and more accessible for the voters. हाँ, देखिए, वोटर का तो है कि आपकी एक जो सबसे पहले उनका होता है कि आपकी जो नाम मतदाता सूची में है कि नहीं, वोटर लिस्ट में नाम है कि वहाँ चेक करना, तो वो टेक्नोलॉजी के कारण आसान हुआ है। ड्रोन के कारण जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको डील करेंगे। लेकिन हम तब मानेंगे इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब इन्होंने किया है कि जब हमारे देश में भी ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो जाएगी। अभी आपने देखा कि रूस में जो वोटिंग हुई थी, तो जो रूस के बाहर के लोग थे उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग की है। तो हमारा देश भी क्या ऑनलाइन की तरफ जाएगा? हालांकि अभी लोग ईवीएम को लेकर कुछ सवाल उठाते हैं, तो हमको मेंटली तैयार होना चाहिए कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम ऑनलाइन की तरफ क्यों ना जाएं, ताकि हमारी 100% वोटिंग हो सके। Who knows, in the next few elections probably we will see this happening in India as well. Welcome back to the election program, Lok Nirnay 2024. We began with the program with the story that, the PMK has joined the not joined, but it has gone into a seat sharing agreement with the BJP today. So another important development that took place today is that the JMM founder Shibu Soren's daughter-in-law Sita Soren joined the BJP. How significant is this development? देखिए, JMM में जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उसके बाद वहाँ झगड़ा हुआ कि सीएम कौन बनेगा, और जो सीता सोरेन है उन्होंने अपना दावा पेश किया था। हेमंत सोरेन चाहते थे कि उनकी पत्नी बने, लेकिन फिर एक थर्ड पर्सन वहाँ पे चंपई सोरेन को सीएम बनाया। वो तब से नाराज थी, और जब चंपई सोरेन सीएम बने तो उन्होंने उनको जो सीता सोरेन है उनको मंत्री नहीं बनाया। वो तब से नाराज चल रही थी, तब से उनकी कोशिश थी कि वो जेएमएम से बाहर जाना चाहती है। तो आज वो बाहर आई, तो आप सोचिए कि बीजेपी का जो झारखंड में 14 में से 11 सीटें और एक उनका जो सहयोगी है 12 सीटें बीजेपी के पास है। तो ले देखिए 2 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के पास हैं। तो अल्टीमेटली झारखंड में जो वहाँ जेएमएम को नुकसान हुआ है, और जो कांग्रेस की जो वहाँ एकमात्र सांसद थी गीता कोड़ा, वो भी बीजेपी में आ गई है। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ कांग्रेस का जेएमएम का थोड़ा सा उनको लग रहा था कि यहाँ हमारी सीटें आएंगी, वो भी बीजेपी की तरफ आ गई हैं। बीजेपी के एक पुराने नेता थे बाबूलाल मरांडी, वो भी बीजेपी वापस आ गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ भी स्थितियाँ कुछ और होंगी। And from Jharkhand, let's go over to the northeast, to Tripura to be precise, where our correspondent Kunal Shinde has now joined us. Kunal, welcome to the program. Yeah, good evening. Kunal, I want to ask you, Tripura is going to vote, is going to polls in the first phase of elections. Both the seats, I beg your pardon, the Tripura West election will be held on April 19th. So in the first and the second phase, can you brief us about the process of the election in Tripura from nomination to voting? Well, yes. From tomorrow onwards, like tomorrow, the gadget notification will be issued. And for the next 7 days, that is till 27th of March, filing of nominations will take place. On 28th of March, the scrutiny of nominations will be held. And after that, on the next day, that is a couple of days after that, that is on 30th March, withdrawal of candidature will take place. As we all know, exactly after 1 month from now, that is on 19th April, polling will be held for Tripura's West seat. Candidates have been announced for this particular constituency. From the BJP side, they have given tickets to former Chief Minister of Tripura, Mr. Biplab Kumar Deb, and he has been pitted against Congress's
veteran leader, Mr. Ashish Kumar Shah. If we go to Tripura East, the gazette notification will be issued on 28th of March. Filing of from there onwards, filing of nominations will take place. On 4th April is the last day of nomination filing, and scrutiny will take place on 5th. Withdrawal of candidature is on 8th April, and polling will be held on 26th April in the second phase. So, in Tripura East, BJP has given ticket to a member from a royal family. She is Maharani Kriti Singh Dev Burma, and she is also the elder sister of Mr. Pradyot Kishore Dev Burman, who is the royal scion of the Dev Burman, or that is the Manikya family. So he is also the chief of, or you can say the supremo of Tipra Mota party. It's a regional outfit which has formed an alliance with the BJP. Like on 7th of this month, two of its leaders, that is Vishakretu Dev Burma and Animesh Dev Burma, they joined the government. They have been given ministerial berth, and after 10 days from there on, the election dates were announced, and as we all know, Kriti Singh Dev Burma has been given ticket from the BJP. Kunal, thank you so much for giving us that detailed information about the election process in Tripura. जी रोशन जी, त्रिपुरा पर हम नज़र डालें तो माकपा और कांग्रेस एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर भी नज़र डालें तो भाजपा ने अपने दोनों विनिंग कैंडिडेट्स को अब की बार टिकट नहीं दिया है। क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप इस स्थिति को? देखिए, त्रिपुरा एक ज़माने में लेफ्ट का गढ़ था, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, और करीबन 35 सालों के बाद त्रिपुरा में बीजेपी ने लेफ्ट की सरकार बदली है और लगातार दूसरी बार वहाँ बीजेपी की सरकार आई। तो पूर्वोत्तर में बीजेपी की पहली ऐसी सरकार बनी जो पूरी मेजोरिटी के साथ आई। दोनों लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती, और इस बार उन्होंने जो मुख्यमंत्री थे उन मुख्यमंत्रियों को उन्होंने टिकट दिया है। तो जो स्टेट मिनिस्टर थी यहाँ प्रतिमा भौमिक, उनकी जगह उन्होंने अपने एक्स सीएम को दिया है। Roshan ji, that is all the time we have for today's discussion. Thank you so much for coming to the studio and discussing the various issues and enlightening our listeners with your valuable input. धन्यवाद। कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे संवाददाताओं और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोकसभा सीट की तय तिथि पर मतदान केंद्र जरूर पहुंचें और अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। And with that, we conclude this program. Namaskar. नमस्कार।